Hello students, welcome back to the Tadri Physics classes. This is the lecture on applications of circular and non-circular motion. We will do some examples today, and yesterday I delivered a lecture on non-uniform circular motion. उसमें मैंने आपको बताया non-uniform circular motion सिर्फ एक ही बात है, वो है कि there is a tangential acceleration which causes the change in speed of an object moving in a circle. There are both accelerations, centripetal acceleration and tangential acceleration, and net acceleration निकालना पड़ेगा. That is root of at square plus ac square, and theta, the angle which the net acceleration makes with the tangential direction, is tan inverse ac by at. वो मैंने कल पूरा आपके साथ डिस्कस किया, आप देख सकते हो लेक्चर. आज मैं इस थोड़ा सा एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा. कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम्स आकर के हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसको कर सकते हैं, लेकिन सिंपल. आई स्टार्ट विद द सिंपल एप्लीकेशंस एंड लेटर वी विल गो टू हायर लेवल्स ऑफ एप्लीकेशंस विद टाइम. एप्लीकेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाय नज़ीर तांत्रे, 11th क्लास लिखा है. ठीक, ओके. चलिए, पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एप्लीकेशन है. अगर मेरे पास ऐसे कुछ, ये है एक शेप, it's a shape on which an object can move, fall, it can fall, it can fall, it can move down, and it can go to make a circular loop of radius r. It can make a circular loop of radius r. हमें देखना है कि from what height it should fall so that it completes a circle. It completes the circular path. ये हमारा क्वेश्चन है. What should be the height h? What should be h? What should be h so that the object completes the circular path. बराबर यहां तक आना चाहिए, and here it should have some velocity. Okay, so let me suppose v. Mass of the object is m. कहाँ से फॉल होना चाहिए ताकि इट विल गो एंड विल रीच टू द टॉप, एंड एट द टॉप इट मस्ट हैव सम वेलोसिटी. इट कैन नॉट गो टू द टॉप एट स्टॉप. ऐसा नहीं कि इट गोज टू द टॉप हियर इट स्टॉप्स. अगर इसको यहाँ स्टॉप करना हो तो ये वहाँ रीच ही नहीं होगा. तो ऐसे कुछ मैं आपको समझाता हूँ. ऐसे अगर यूँ सिचुएशन है तो ऑब्जेक्ट यहाँ फॉल होता है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा. अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगा हायर लेवल पर, शायद यहाँ आकर के यहाँ हो जाएगा. तो यहाँ पर आने के लिए इसको अच्छी खासी हाइट से फॉल होना है ताकि इट कंप्लीट्स द सर्कल, सो दैट इट रीच द टॉप ऑफ द सर्कल एंड हैज़ गॉट सम वेलोसिटी देयर. सो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट? अगर इस हाइट से ज़्यादा फिर रिलीज करोगे फिर तो करेगा ही करेगा, लेकिन हमें देखना है कि मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट से कहाँ से फॉल होना चाहिए ताकि इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट्स दिस सर्कल और इट कंप्लीट्स दिस सर्कुलर पाथ, एंड हियर इट मस्ट हैव सम वेलोसिटी. ऐसा नहीं होगा कि हियर इट शुड जस्ट रीच वेयर इट्स वेलोसिटी इज जीरो. नो, अगर यहाँ इसको वेलोसिटी जीरो बनना हो तो ये वहाँ पहुँचेगा ही नहीं. If it has to reach to the top level, at the top level it must have some velocity. Okay, now see here. पहली बात यह है कि मुझे बताइए, when it goes from here to the top here, so what is conserved in the process? Because in the process there may be a normal reaction, but normal reaction is always perpendicular to velocity. Normal reaction is always perpendicular to the velocity. Therefore, normal reaction will not do any work. नॉर्मल रिएक्शन कोई काम नहीं करेगा. सो ग्रेविटेशन फोर्स इज a conservative force in which total mechanical energy is conserved. So only force that acts in this case is gravitational force, and gravitational force is a conservative force. So in this case we can say the total mechanical energy of an object moving like this remains constant. तो क्या है यहाँ मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ क्या है मैकेनिकल एनर्जी, वो हम इक्वेट कर सकते हैं. तो ठीक है, मैं मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट करता हूँ. आई वॉन्ट टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर मैकेनिकल एनर्जी.
टॉप पर E1 that is equal to mgh plus kinetic energy 0. Now it just begins to fall. With initial velocity 0, it begins to fall and reaches at the top here. So what is the energy there? Total energy. mg. How much away it is from this position? Ground level 2r. तो 2r मल्टीप्लाई करके ये बनता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस बिकॉज इट इज नॉट मूविंग काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. वजह यह है कि द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स इन द प्रोसेस इज gravitational force, and gravitational force is a conservative force in which total mechanical energy is conserved. तो हम इन दो को इक्वेट कर सकते हैं. We can write mgh is equal to mgr 2 times plus 1/2 mv². तो ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं. लेकिन इस h को निकालने के लिए हमें और एक इक्वेशन की जरूरत है. सो व्हाट इज दैट इक्वेशन? जब ये टॉप पर आता है सो इट मूव्स इन अ सर्कल हियर और ए पार्ट ऑफ ए सर्कल. उस सर्कल का रेडियस r है. तो बताइए वी नीड अ फोर्स toward the center, or we need acceleration, that is v² by r acceleration. Who provides that acceleration? Gravitational force mg downwards. Also ये जो टॉप पार्ट है इस सर्कल का ये टॉप पार्ट है इस चीज का, तो वो नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे की ओर प्रोड्यूस करेगा. तो दैट मीन्स v² by r acceleration is provided by two forces, normal reaction and mg. So अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा कि this acceleration mv² by r toward the center is provided by two forces, that is normal reaction which the upper surface creates in the downward direction and mg also in the downward direction, and both directions are towards what? Both directions toward the center O. तो अब F is equal to ma को क्या लिखेंगे आप? F is resultant force, external resultant force. What is the external resultant force here? Yes, mg plus n. mg plus n is equal to m. What is the acceleration towards the center O? That is v² by r. It is net external force is equal to ma. Same Newton's law, F is equal to ma. लेकिन F is the net external force, m is the mass of an object, and a is the centripetal acceleration, that is v² by r. अब फॉर मिनिमम v, ये स्पीड मिनिमम होने के लिए, कम से कम ये स्पीड होने के लिए या कम से कम ये h होने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को 0 रख सकते हैं. लेट मी सपोज ओनली mg इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड दिस v² by r. नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अगर ज्यादा कुछ हाइट से गिराओगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी, यहां ज्यादा हाइट से गिराओगे तो ये सर्कल तो बनेगा ही और ये वेलोसिटी बढ़ जाएगा यहाँ पर, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगा और फिर नॉर्मल रिएक्शन को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा. नॉर्मल रिएक्शन को भी अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मगर उसके लिए h ज्यादा होना चाहिए या यहाँ स्पीड बढ़ जाना चाहिए. बट आई डोंट वांट दैट. आई वांट मिनिमम h and minimum v, for which I don't need normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन मुझे जरूरत ही नहीं है. हाँ ठीक है, अगर h से ज्यादा हाइट से गिराना है या यहां स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन अपना काम शुरू करेगा. नॉर्मल रिएक्शन विल गेट एक्टिवेटेड. सो आई विल पुट नॉर्मल रिएक्शन 0 फॉर मिनिमम h और मिनिमम स्पीड एट द टॉप और मिनिमम v. तो अब क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? mg is equal to mv² by r. mg is equal to mv² by r, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मैंने 0 कर दिया बिकॉज आई वांट मिनिमम v. ठीक, पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन दैट वाज दिस mgh is equal to 2mgr by plus 1/2 mvr². तो मैं दूसरा इक्वेशन भी लिखूंगा. mgh is equal to mg into 2r plus
1/2 mv²। ये m² का वैल्यू दीजिए यहां से ऐसे mv² का वैल्यू, ताकि v² खत्म होकर के मुझे h मिल जाए। mgh इज इक्वल टू mg इंटू 2r प्लस 1/2 mv², दैट इज mgr। इनको मल्टीप्लाई करने से mgr, mg खत्म, तो मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू 2r प्लस r/2, दैट इज 5r/2। आंसर, इतने हाइट से ये फॉल होना चाहिए, इतने हाइट से 5r/2 से फॉल होगा, तभी जाकर यह ऊपर जाकर के यहां तक सर्किट कंप्लीट करेगा, तभी जाकर ये पूरा यहां इस आर्क के पूरा टॉप तक जाएगा, और टॉप पर भी इसको वेलोसिटी मिलेगा। कितना वेलोसिटी टॉप पर मिलना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कितना, वो भी बताइए, वो भी बताइए। टॉप पर ये वेलोसिटी मिलना चाहिए, ये देखो यहां से मिलेगा v² इज इक्वल टू mm कैंसल, gr v² mm कैंसल gr, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ gr। हो गया हमारा क्वेश्चन। सो इस आर्क में किस हाइट से ऑब्जेक्ट फॉल होगा ताकि ये पूरा सर्कल बनाएगा, दैट वाज द क्वेश्चन। एक बार फिर कर दीजिए आप इसको। चलो अब जाकर के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। Speed, which of the following is true about its acceleration? It's a particle moving in a circle, it is the velocity, and speed increases, speed changes, ये speed change होता है, vary करता है। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका होगा। Which of the following is true about its acceleration? It has only tangential acceleration. Tangential acceleration है, लेकिन is it the only acceleration that it has? It has only radial acceleration. No, it has both radial acceleration and tangential acceleration. दोनों है. It is a non-uniform circular motion in which speed changes, in which speed varies. It may increase or it may decrease. अगर speed increase हो रहा है ये, तो समझो acceleration इस और है tangential acceleration. अगर ये speed decrease हो रहा है, समझो tangential acceleration opposite to the velocity है, लेकिन है tangential. C is the answer. C is the answer. Second question. The centripetal acceleration of a body in circular motion is always directed. हाँ, किस ओर directed है? ये centripetal acceleration किस ओर directed होता है? बताइए जरा, शाबाश। Centripetal acceleration is always directed towards the center. Tangentially to the path, no. Outward along the radius, outward means this way. No. Inward along the radius, yes. Inward along the radius. Inward along the radius. ये R है, ये inwards है. C is the answer. Third question. For a particular particle moving in a circle of radius r with angular speed omega and angular acceleration alpha, the magnitude of total acceleration is. क्या कह रहा है question? A particle moving in a circle. Centripetal acceleration is this. It is tangential acceleration. लेकिन कह रहा है कि omega is the angular velocity. And alpha is angular acceleration. कह रहा है कि इन दो का जो नेट एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर लिखूं। आपको पता है वो, दैट इज a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ऑफ at², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो पता है। लेकिन इसने ओमेगा दिया एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा दिया एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको पता है कल ही मैंने बताया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर, कल साबित किया इन यस्टरडेज लेक्चर। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज v² बाय r, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर, साबित किया, क्योंकि हमने ये भी साबित किया v इज इक्वल टू r ओमेगा। चूंकि इसने ओमेगा और अल्फा दिया है, he wants us that this a should be obtained in terms of omega and alpha. इसलिए at को ये सब्स्टिट्यूशन कर दो और ac को ये सब्स्टिट्यूशन कर दो।
हो गया समझो, a acceleration is equal to root of what is at square, that is alpha r whole square, या स्मॉल r भी ले सकते हैं. what is ac square, that is r omega square, मगर उसका स्क्वायर ac is r omega square, लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, that is r omega square उसका. देखते हैं आंसर, ये देखो आंसर, मैंने कैपिटल R लिखा है, इसने स्मॉल r लिखा, और कुछ नहीं. C इज द आंसर. चेक करो आंसर. ठीक. लेट मी गो टू द अनदर क्वेश्चन. Fourth question. A body moves in a circle of radius 2 meters with its speed increasing uniformly from 2 to 6 meters in 4 seconds. The tangential acceleration is. ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और फिर यहाँ स्पीड बन जाता है 6 मीटर पर सेकंड. कितने सेकंड्स में? 4 सेकंड्स में ये सब होता है. 4 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड 6 मीटर पर सेकंड में बन जाता है. तो ऑब्वियसली देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है, जो ये सब करता है, जो ये स्पीड बढ़ाता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं है स्पीड बढ़ाने में. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, तो निकालो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम, खत्म. सेम फार्मूला जो एक्सेलरेशन का होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. यहाँ फाइनल स्पीड माइनस दिस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 4 by 4, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आंसर ये देखो, पहला ही आंसर. सो व्हेन स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 6 देयर इज चेंज इन स्पीड. सो व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? चेंज इन स्पीड बाय टाइम. आई ऑलरेडी टोल्ड यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. उसमें स्पीड का ही हिसाब करना होता है. फिफ्थ क्वेश्चन. At the instant when the speed is 4 meter per second, the radial acceleration of the body is. इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि जब रेडियल वेलोसिटी, रेडियल स्पीड, देखो at the instant when the speed is, हाँ स्पीड की बात कर रहा है, when speed is 4 meter per second, ठीक, तब जाकर कह रहा है कि बताइए रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, बताइए इस ओर एक्सेलरेशन क्या है. बस radial acceleration is equal to v square by r. ठीक. what is v square? that is 4 square by r. r दिया होना चाहिए. ऊपर वाले क्वेश्चन में. हाँ, वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया होना चाहिए. 2 meters, 2 meters, that is 16 by 2, that is 8 meter per second square. आंसर. जब स्पीड दिया है किसी पॉइंट पर तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना इजी है, v स्क्वायर बाय r. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या अल्फा r, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू r. फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो कर दिया, 8 निकला आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन. द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? अरे भाई टेंजेंशियल जो है तो टेंजेंट ही होगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंट ही तो होगा. ये है डायरेक्शन, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है. अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर नो, अलोंग द रेडियस एफ नो, परपेंडिकुलर वेलोसिटी एट नो, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, पाथ का टेंजेंट. सर्कल में न सही, अगर पार्टिकल यूं भी कर रहा हो तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्सेलरेशन टू द टेंजेंट टू द पाथ, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं. और उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यही होता है कि स्पीड इंक्रीज करने का मकसद होता है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज चेंजेस द स्पीड, मे बी इट इंक्रीज द स्पीड, मे बी इट डिक्रीज द स्पीड, डिपेंड्स. इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. आपको पता है कि वेलोसिटी, ये पार्टिकल का वेलोसिटी ये है, अगर एक्सेलरेशन भी इसी टेंजेंट है समझो, ये वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये एक्सेलरेशन यूं है, टेंजेंशियल है लेकिन है अपोजिट टू वेलोसिटी, तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा.
These are the fundamental rules, these are the fundamental concepts जो आपको understand होने चाहिए आखिर and afterwards you apply these concepts to real time situations, to big problems, to small problems, to situations. अगर यही पता नहीं है तो फिर अच्छे हैवी प्रॉब्लम्स करने का कोई मकसद नहीं है, कोई उनका फायदा नहीं है. लेट्स गो अहेड. ओके, चलिए 7th. A car moves along a circular track with decreasing speed. ये सर्कुलर ट्रैक है, कार मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, मगर उसका स्पीड कम हो रहा है. ये जो स्पीड है ये कम हो रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज. तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट होना चाहिए वेलोसिटी को. द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, नो. डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, नो. सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स ये, अवे फ्रॉम द सेंटर मीन्स ये, नो. डायरेक्टेड अपोजिट टू वेलोसिटी, यस, क्योंकि इसका स्पीड कम हो रहा है. मतलब कोई आगे की ओर जा रहा है, आपने उसको पीछे की ओर खींचा ऐसे, तो उसका स्पीड कम होगा. सो जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज अपोजिट टू हिज वेलोसिटी, हिज वेलोसिटी विल डिक्रीज. तो इट शुड बी डायरेक्टेड अपोजिट टू वेलोसिटी, ऐसे कुछ हो गया. सी 8th. If the speed of particle increases linearly with time as v is equal to kt, then its radial acceleration is proportional to, radial acceleration is centripetal acceleration, that is v square by r. अब स्पीड दिया है that is kt. अब खुद बताओ जो रेडियल एक्सेलरेशन किसको प्रोपोर्शनल होगा, t को होगा, कांस्टेंट होगा, t स्क्वायर को होगा कि 1/t को होगा, जरा बताइए. शाबाश, इमेजिन करो. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, AR. तो अगर v kt है तो AC जो है वो किसको प्रोपोर्शनल है? इज इट प्रोपोर्शनल टू t कांस्टेंट, t स्क्वायर और 1/t? थिंक फॉर ए मोमेंट. कम से कम ये चीज तो आना चाहिए. AC, ये v को सब्स्टिट्यूट करो, kt, इसको k स्क्वायर t स्क्वायर बाय r. सो AC इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर. आंसर. कांस्टेंट्स को अलग छोड़ करके प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर को हो गया. सी इज द आंसर. ओके. 9th. A particle moves in a circle of radius r such that its angular acceleration is constant. It is tangential acceleration is, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा आर. ठीक, अगर अल्फा ही आपका कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही है, बिकॉज पार्टिकल मूव्स इन अ कांस्टेंट सर्कल. ये कांस्टेंट है, और अगर आपका अल्फा ही कांस्टेंट है तो AT के बारे में क्या कहोगे आप? What can you say about AT if alpha and r both are constant? Constant. So it is tangential acceleration is constant, 0 proportional to t. It is tangential acceleration must be constant because tangential acceleration depends upon alpha and r. If in the question it is given alpha is constant and r is anyway constant, then AT has to be constant. Constant is the answer. Tenth question. In non-uniform circular motion, which of the following is correct about velocity and acceleration vectors? Which of the following is correct about velocity and acceleration vectors? इसके बारे में, एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, ये वेलोसिटी है और नॉन यूनिफॉर्म है ना, और ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या ये भी हो सकता है, अपोजिट वेलोसिटी भी हो सकता है. तो बताइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? बोथ आर पैरेलल. क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है? भाई देखो, अगर ये एक्सेलरेशन AT और AG, इनका रिजल्टेंट ये होगा. क्या ये A और AV पैरेलल है? क्या ये A, इन दो का रिजल्टेंट निकाला ना मैंने, क्या ये A और V पैरेलल है? नहीं है. बोथ आर परपेंडिकुलर. क्या है परपेंडिकुलर? नहीं है.
क्योंकि नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, न कि AC एंड वेलोसिटी, ना ये तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है V और AC। नेट A एंड V क्या परपेंडिकुलर नहीं है? एक्सेलरेशन ऑलवेज रेडियल। क्या एक्सेलरेशन हमेशा रेडियल होता है? नेट एक्सेलरेशन क्या हमेशा रेडियल होता है? क्या ये रेडियल है? क्या ये रेडियल है? AC रेडियल है? क्या ये नेट एक्सेलरेशन रेडियल है? क्या ये एक्सेलरेशन रेडियल है? द आंसर इज नो। Acceleration is both tangential and radial components and not parallel to velocity. हाँ है, रेडियल कंपोनेंट भी है और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है और वेलोसिटी को पैरेलल नहीं होता। दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो नेट एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन, और जो नेट एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को पैरेलल नहीं होता है। दैट इज एक्सेलरेशन इज बोथ टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट्स एंड नॉट पैरेलल टू वेलोसिटी। These were few questions, very simple, but this forms the conceptual base of uniform and non-uniform circular motion. इसको मैं कहूँगा इसे conceptual base build up हो जाता है। Thank you for watching my lectures, but don't forget to subscribe to my channel Tantra Sir Physics Class. Thank you.